Hello students, now we will start our question 8 of exercise 6.5 of chapter similar triangles of grade 10. Here you have this figure and O is the interior point on this triangle. AOD is perpendicular to BC, OE is perpendicular to AC and OF is perpendicular to AB. And show that OA square, that means you have to join OA square plus OB square, that means you join to OB, and OC square, that means you join OC. Yeah, this square is equal minus OD square minus OE square minus OF square is equal to AF square plus BD square. AF इस triangle में आ रहा है, BD इस triangle में आ रहा है, and CE square. Clear? So you have to prove that. And second part is this. So you have given this figure and these are perpendiculars and these things you have to prove. So for that we join OA, OB and OC, because in the figure we have not joined that OA, OB and OC. So we join OA, OB and OC. So for now prove first part. For first part AF square, BD square and CF. अब AF जो है वो किस triangle में आ रहा है? In this triangle AOF. These are the perpendiculars. So this is right angle triangle. So in right triangle AOF, right angle is this F. F के opposite क्या होगी? OA. That is OA square plus OF square plus OA square is equal to OF square plus AF square by Pythagoras theorem. So now in right triangle AOF by Pythagoras theorem, so that is H square is equal to B square plus B square. That is the Pythagoras theorem. Now in triangle A, right triangle AOR, what is the hypotenuse? Right angle, this is F. इसके opposite side क्या है? OA. So this is the hypotenuse. और बाकी दोनों क्या हो गए इसके? Perpendicular base. You can write it as OF square plus AF square. Clear? अब हमें जो proof करना है वो क्या है? AF अलग है और OA वगैरह एक side पे है. So हम क्या करेंगे? AF square की value निकाल लेंगे. So this implies OA square, OF इधर आके क्या बन जाएगा? माइनस का, और AF अपनी साइड पे रहा. क्लियर? सो दिस implies राइट हैंड साइड पे लिखो आप. राइट हैंड साइड लेफ्ट पे लिख लिया हमने. AF square is equal to OA square minus OF square. This is the first part. Same as it you have taken another triangle, triangle ABOD. In right triangle BOD, same as it by Pythagoras theorem. Right triangle क्या है? D पे, D के सामने OB is the hypotenuse. OB square is equal to OD square plus BD square. Same as it you have to find the value of BD. तो BD की वैल्यू क्या बन गई हमारी? BD square is equal to OD इधर चला गया, OB square minus OD square. Clear? This is the third. Same as second point. Same as it you have taken third triangle, that is COE. So in right triangle COE by same Pythagoras theorem. अब यहाँ पे E पे 90 है, E के सामने कौन सी साइड आ रही है? That is OC. OC is the hypotenuse. OC square is equal to OE square plus CE square. तो CE की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? CE square is equal to OC उधर जा OC square minus OE square. ठीक है? CA square की वैल्यू क्या होगी? OC square minus OE square. तो this is the third point. Now we adding our first, second and third, because we have to add them na, AF square plus BD plus CA. Now your left hand side है AF, BD and CE. ये सभी आ गई हमारे पास. उसके बाद हमें क्या करना है? इनको ऐड करना है. So we add them. So adding first,
सेकेंड एंड थर्ड, तीनों को हमने ऐड किया। AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू, उसी तरफ OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर। तो अब प्लस वाले आप इकट्ठे कर लो, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर। क्लियर? प्लस वाले OA B OC, ये प्लस वाले, फिर OD OE OF, दीज आर माइनस, इनको बाद में लिखना। और इधर से हमारा AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट व्हिच वी हैव प्रूव्ड। सिंपल, वी हैव टेकन दैट राइट ट्रायंगल्स AOF BOD एंड COE। ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेम एज इट वी हैव टेकन सेकेंड पार्ट AE स्क्वायर की AF स्क्वायर प्लस BD CE। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी, जो राइट मीन ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, दिस इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। हमने इसके इक्वल शो करना है। सो दैट मीन्स पहले हमने ये वाली ट्रायंगल या अब हम दूसरी वाली ट्रायंगल लेंगे जिसमें AE आ रहा है, तो इधर BF आ रहा है, इधर CD आ रहा है। सेम एज इट हम इसमें इनमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, उनको एडिंग करेंगे कि जो है राइट हैंड साइड आपकी सेम बच जाएगी, क्योंकि ये साइड आपकी सेम रहेंगी। दीज आर इक्वल टू दिस एंड सेम एज इट AE CD, दीज आर इक्वल टू दिस। तो बोथ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों जो साइड्स हैं सेम थिंग के इक्वल है। इसका मतलब वो क्या हुआ, दोनों के आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। सो लेट दिस इज द फर्स्ट पार्ट वी हैव प्रूव्ड। नाउ कम टू सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट, सो यू हैव टेकन द राइट ट्रायंगल्स। फर्स्ट इज AE, सो आप राइट ट्रायंगल देखो AE वाली। सो इन राइट ट्रायंगल फॉर सेकेंड पार्ट एंड राइट ट्रायंगल AOE, ये राइट ट्रायंगल ली बाय पाइथागोरस थ्योरम। नाइंटी एंगल इज एट E, तो उसके सामने क्या है A, सो दैट इज द हाइपोटेन्यूज। OA स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। ठीक है, तो हमने माइनस किया, AE की वैल्यू निकाली है, OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, वो क्या बन गया हमारा AE स्क्वायर। दिस इज आवर फोर्थ पार्ट, क्योंकि थर्ड तक तो हम नंबर दे चुके हैं। 4 पॉइंट। सेम एज इन नेक्स्ट राइट ट्रायंगल हमने ली, that is BOF. In right triangle BOF, same by Pythagoras theorem. So that is BOF में अब राइट एंगल क्या है F पे, इसके ऑपोजिट क्या है OB। सो पाइथागोरस थ्योरम लगाई, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OF स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। OB स्क्वायर इज इक्वल टू OF स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। तो हमें BF की वैल्यू चाहिए, तो BF क्या बन गया OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल टू BF स्क्वायर। दिस इज आवर फिफ्थ नंबर। सो नेक्स्ट हमारी क्या रहेगी CD। CD किस में आ रहा है, ये वाला ट्रायंगल COD एंड राइट ट्रायंगल COD। अगली राइट ट्रायंगल इज COD, इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, तो क्या बना OC स्क्वायर। D के सामने ऑपोजिट साइड क्या है OC, OC स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो CD की वैल्यू क्या बन गई OC स्क्वायर, OD इधर आके माइनस का हो गया OD स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर। दिस इज आवर 6th नंबर। So now we adding our 4th, 5th and 6th part. Adding 4th, 5th and 6th. So by adding 4,
5th and 6th. So what you observe? OA square minus OA square, left side में OB square minus OF square plus OC square minus OD square. This is equal to लेफ्ट हैंड साइड हमने सभी को ऐड कर लिया, OA उसके माइनस OE स्क्वायर, O प्लस OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर. अब राइट हैंड साइड हमारी क्या है? A स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AE स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. अब इसके लिए क्या बन गया हमारा? OA स्क्वायर प्लस OB प्लस वाले साइन करते के लिए OB प्लस OC, फिर माइनस OD है, OE है और OF है. ये माइनस हो गए. दिस इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट, our first part this AF square plus BD square plus CD square, this is equal to OA square plus OB plus this. ये उन दोनों की जो है, और इसमें भी हमने ये सारे जो है इनकी वन साइड जो है वो सेम है. This and this, those both parts are equal to the same thing. AF square plus BD square plus CE square, ये भी, और AF E square plus BF square plus CD square, both are equal to OA square plus OB square, OC square minus OD minus OE square minus OF square. Both things are equal to the same thing. So this implies from first part, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ये ना, फर्स्ट पार्ट में शो किया, एंड वी नेम इट एज 7. फ्रॉम फर्स्ट एंड 7 व्हाट यू ऑब्जर्व, देयर वन साइड इज इक्वल टू, सो देयरफॉर AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. So this is CD square. So that means we have proved that these parts are equal. So only Pythagoras theorem is applied in this question. Thank you.